everyone, welcome to my channel, and today I will be teaching you section 71 of Companies Act 2013 followed by rule 18 of share capital and debenture rules. So as you are aware, whenever we are reading any section in Companies Act 2013, so it is followed by further provisions which are contained in the rules of that respective section. Okay, so today we are having very important section of Companies Act, that is section 71. What I will be doing is I will be covering all the important sections which are quite of a lengthier sections in the Companies Act. So section 70 is one of them. So what I will be requiring from you is I want feedback from you guys that how you want the sessions to be. I will be making a playlist of all the sections of the Companies Act. It will not follow the sequence mainly because I will be covering the important sections first. So by the time you will be having your exams, you will have a playlist containing all the sections of the Companies Act 2013. So today we are having the first section as section 71. So what I have done is, here is the complete section on the MCA I have opened in front of you, and we can cover both the section from the MCA and what the specified summarized note I have made for you guys. So I will be covering both of them. On one part we will be reading the respective section from the MCA, and here we will be reading the summarized version of that subsection. Here you can see if section 71 भी है, उनके subsections का मैंने यहाँ पे summary बनाया हुआ है, and respectively उसके just नीचे I have made summary for the rules of that respective section. तो section rule 18 of the share capital and debenture rules deals with the प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 71, जो कि उसके फर्दर प्रोविजंस यहाँ पे होंगे. तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों मतलब कंप्लीट सेक्शन यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, कुछ भी आप मिस आउट नहीं कर सकते फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो वी विल बी स्टार्टिंग, and if you want the summarized notes you can just comment on the video below, and I will be sending you my contact details on the any way possible from the link below. You can just send me your details and ask whatever you want. Our comment section is open for you to ask and come up with the queries, feedback, etc., or any kind of help which you will be needing for you. Okay, so let's get started. So section 71 is with respect to the debentures. So what is debenture? अगर आप यहाँ पे जाओगे तो डिबेंचर की डेफिनेशन आप यहाँ पे बस कर्सर को रख के भी पढ़ सकते हो. तो डिबेंचर की डेफिनेशन है, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट. सो ये अगर डिबेंचर्स का आपको डेफिनेशन आता है, जो कि मेनली आता नहीं है पर आपको पता होना चाहिए कि कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका डेफिनेशन क्या है. तो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ द डिबेंचर. सो इट्स बेसिकली अ डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड और एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच एविडेंस अ डेट ऑन द कंपनी, वेदर आप उसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. चार्ज मतलब कंपनीज के एसेट पे चार्ज क्रिएट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. तो ये है इसकी डेफिनेशन. यहाँ पे अगर सबसेक्शन 1, 2 और 1, 2 यहाँ से आप देखोगे तो टोटल 13 सबसेक्शंस है. तो मैं आपको समराइज वर्जन उनका बता देती हूँ. व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको पहले यहाँ से एमसीए पे जाके वो पूरा आपको सेक्शन पढ़ना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो मेरे नोट्स हैं उनका यहाँ पे समराइज वर्जन पढ़ना है. आप चाहो तो इसके आगे अपना नोट्स या अपना कुछ भी यहाँ पे जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके सामने भी आप नोट कर सकते हो, एंड यू कैन प्रैक्टिस राइटिंग द आंसर from this area, on this area. Okay, so that आपकी full फ्रेश आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी. So okay, let's get started. So suppose the first subsection says that a company may issue debentures with an option to convert such debentures into shares either wholly or partly at the time of redemption, provided that the issue of debentures with an option to convert such debentures into share wholly or partly shall be approved by the special resolution passed at the general meeting. So what does it say that कंपनी में इशू डिबेंचर्स, यहाँ पे सिर्फ डिबेंचर्स बोला है, इट हैज़ नॉट सेड कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल. तो आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, साथ में ऑप्शन भी दे सकते हो उनको कन्वर्ट करने का. बट अगर ऑप्शन दे रहे हो चाहे होली हो या पार्टली हो, आपको उसके लिए क्या पास करना है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है. तो हियर एज यू कैन सी कि आपका यहाँ पे आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो सबसे पहले तो. बट अगर डिबेंचर्स कैसे कन्वर्टिबल भी होते हैं, नॉन कन्वर्टिबल भी होते हैं. अगर वो कन्वर्टिबल है तो वो कन्वर्टिबल है होली चाहे पार्टली, आपको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ही
आप कौन सा डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. नॉन कन्वर्टेबल के लिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशंस एज सच. ओके. Second subsection is I will not be reading because it is very generic and very मतलब upfront कि there will be no voting right on the debentures given to the debenture holders. तो third subsection says that secured debentures are allowed to be issued subject to the prescribed conditions as given in the sub rule as given in the rule 18 of the share capital and debentures rule. तो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे थर्ड वाला, तो सिक्योर डिबेंचर्स में बी इशूड बाय अ कंपनी सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल. तो व्हाट आर द सिक्योर डिबेंचर्स? अगर कोई भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है एंड उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करती है, जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो उसके अगेंस्ट में वो चार्ज या फिर सिक्योरिटी क्रिएट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योर डिबेंचर्स. कि उनके ऊपर एक सर्विलेंस होता है, कोई एक चेक होता है कि और जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट होता है वो प्रोटेक्टेड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योर डिबेंचर्स. अगर आप सिक्योर डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ जो भी कंडीशंस है वो सब रूल 18 में दी हुई है एंड सब रूल हम अभी नीचे पढ़ने वाले हैं. ठीक है. आपको अब ये डिबेंचर है तो इनका रीपेमेंट भी करना होता है, इनका इंटरेस्ट भी पे करना होता है, तो इसके लिए आपको DRR क्रिएट करना होता है, जो कि आप कंपनी के जो प्रॉफिट्स डिविडेंड पे करने के लिए अवेलेबल होते हैं उससे क्रिएट करते हो एंड दे विल बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ओनली. ओके. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. DRR वाला पॉइंट आएगा. अगर डिबेंचर है तो अब हमें जहाँ पे भी अगर कोई जैसे डिपॉजिट है तो आप डिपॉजिट रिडेम्पशन रिजर्व भी क्रिएट करते हो. अगर डिबेंचर्स हैं तो आप यहाँ पे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करोगे, तो डेट इज अ पॉइंट. अगर आप कोई भी यहाँ पे डिबेंचर इशू कर रहे हो और वो किसी प्रॉस्पेक्टस के थ्रू कर रहे हो या फिर आप उसको पब्लिक को इशू कर रहे हो, पब्लिक इनविटेशन इनवाइट कर रहे हो, पब्लिक इनविटेशन दे रहे हो, या फिर आप मेंबर्स एक्सीडिंग 500 को इशू कर रहे हो, तो ये मतलब बहुत यहाँ पे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है. उस केस में आपको उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ही बोल सकते, देयर इज मतलब अ पर्सन और इट्स अ बंच ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशन विच आर मतलब इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आर कॉल्ड डिबेंचर ट्रस्टीज. so they will be looking after the interest of the debenture holders, we can say. so यहाँ पे एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, दैट इज द डिबेंचर ट्रस्टीज. अब इन डिबेंचर ट्रस्टीज की ड्यूटी क्या होती है? दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड रिड्रेस ऑफ द ग्रीवेंसेस ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, है ना. अब इनको जो भी इनकी ड्यूटीज होगी वो हम नीचे पढ़ने वाले हैं एक बार और, इन द रूल्स कंटेंट देयर इन. ट्रस्ट डीड, अगर यहाँ पे कोई भी कंपनी है, सपोज दैट इज कंपनी एंड कोई भी अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाए तो इनके बीच में इनको छोड़ने के लिए एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है. इस केस में उसको क्या बोलते हैं? डिबेंचर ट्रस्ट डीड, DTD, वी कॉल इट एज DTD, डिबेंचर ट्रस्ट डीड. and there are some debenture trustees organization. I can give you one example of Catalyst Trusteeship Limited is also one of those. so आप एक बार गूगल कर सकते हो कि विच आर द डिबेंचर ट्रस्टीज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर आप आर्टिकलशिप करने जाते हो तो इट इज ऑल्सो अ गुड ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क विथ. ओके. दिस एरिया ऑफ वर्क. सो डिबेंचर ट्रस्ट डीड में जो कंडीशंस होते हैं, दैट कैन नॉट इंडेमनीफाई द ट्रस्टी अगेंस्ट द नेग्लिजेंस. तो डिबेंचर ट्रस्टीज को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है, तो उनके नेग्लिजेंस में उनको जो DTD होगा वो स्पेयर नहीं करेगा. सो दे हैव टू लुक आफ्टर देयर ड्यूटीज वेरी केयरफुली. एंड एग्जम्पशन अलाउड विद द वैल्यू होल्डर अप्रूवल. अगर डिबेंचर होल्डर कोई उनको एग्जम्पशन दे देता है कि ठीक है, नेग्लिजेंस हैज हैपेंड, I approve of the same and I have no objection with it. I don't want to take any action against the debenture trustee. Then he may exempt, he may be exempted. He may or the organization may be exempted from those negligence part. Okay. So companies की obligations यहाँ पे क्या क्या आ जाती है with respect to debentures. company suppose अगर आप shares होते हैं तो उस पर आपकी obligations क्या बनती हैं? Equity पे dividend देना बनता है, correct? और उस पर अगर फाइनल अगर लिक्विडेशन में कंपनी जाती है तो आपको अमाउंट पे करना होता है. ओके.
तो सेम वे अगर आप यहाँ पे डिबेंचर्स आपको इशू कर रहे हैं तो आपको उनको क्या देनी होती है, दो चीज़ें, वन इज इंटरेस्ट एंड द सेकेंड वन इज रिडेम्पशन का अमाउंट विच इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, अगर यहाँ पे अब ट्रस्टीज का क्या, अगर मान लो कि अगर जो भी सिक्योर्ड अगर डिबेंचर्स हैं तो वहाँ पे अगर आपका वैल्यू कम हो रहा है, अगर आपने 400 करोड़ का क्रिएट किया था, आपके भी एसेट्स की वैल्यू कितनी चल रही है, 60 करोड़ पे चल रही है, सपोज 80 करोड़ पे चल रही है, तो यहाँ पे ये इनके डिबेंचर ट्रस्टीज के पार्ट पे ड्यूटी होती है कि वो कंपनीज को इंटीमेट इनके अगेंस्ट पे इनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। तो डिबेंचर होल्डर्स क्या कर सकते हैं कि अगर ऐसा फेलियर हो रहा है पे करने में इंटरेस्ट या फिर रिडेम्पशन करने में, तो एनसीएलटी को अप्लाई कर सकते हैं। एनसीएलटी में ऑर्डर इमीडिएट रिडेम्पशन एंड इंटरेस्ट पेमेंट टू द कंपनी। ओके, तो ये उनकी ड्यूटी आ जाती है। कॉन्ट्रैक्ट टू टेक डिबेंचर डिबेंचर्स इन्फोर्सेबल बाय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो ये एक जेनेरिक पॉइंट है, ये भी आप पढ़ सकते हो, बट इट इज़ नॉट दैट सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12th पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी टू टेक अप एंड पे फॉर एनी डिबेंचर ऑफ द कंपनी मे बी इन्फोर्स्ड बाय अ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो इसके थ्रू भी कर सकते हैं हम। एंड व्हाट डज द 13 पॉइंट से कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या क्या रोल आ जाता है, मैंडेटरी रोल नहीं है बट इट में प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर टू इशू द डिबेंचर्स। फॉर्म ऑफ ट्रस्ट डीड, अभी तो कंपनीज एक्ट के तहत इट इज SS7, सॉरी SS12 है सॉरी, एंड DRR रूल्स बता सकती है, वो प्रिस्क्राइब कर सकती है। इंस्पेक्शन और एक्सेस के भी रूल्स को वो गवर्न कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इट्स डिस्क्रिप्शन। ओके, डिबेंचर्स अगर पढ़ने जाएं अभी हम, डिबेंचर्स के रूल्स अगर हम पढ़ने जाएं कि यहाँ पे क्या क्या एडिशनल हमको यहाँ पे अगर पढ़ना है रूल, एडिशनल प्रोविजंस, तो उसके लिए यहाँ पे देख लो, कंडीशंस फॉर इशूइंग सिक्योर डिबेंचर्स, आप 10 साल के ऊपर नहीं कर सकते, मतलब इनका टेन्योर कितने साल का होना चाहिए, 10 साल का होना चाहिए। एक्सेप्शनल केसेस लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के केस में 30 ईयर्स का ये हो सकता है, तो 10 ईयर्स से ज़्यादा को तो आप कर ही नहीं सकते। अगर एक्सेप्शनल, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो उसमें आप कर सकते हो। सिक्योर, इट मस्ट बी, ये देखना यहाँ पे मस्ट बी सिक्योर्ड बाय अ चार्ज और मॉर्गेज ऑन सफिशिएंट एसेट्स। ओके, तो इसको हम कैसे सिक्योर करते हैं, एक डीड ऑफ हाइपोथिकेशन होती है, डीड ऑफ मॉर्गेज होती है, इसके थ्रू हम सिक्योर करते हैं हमारे डिबेंचर्स को। मतलब क्या होता है, अगर कंपनी को रीपे करना है तो इसके ये सिक्योरिटीज़ और एसेट्स हम सिक्योर करेंगे ये वाली डीड को एग्जीक्यूट करके, और अगर एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो फिर डिबेंचर ट्रस्टीज का ड्यूटी होगा वो इंश्योर करना कि उनके एसेट्स की वैल्यू से कम ना हो और टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस इफ द वैल्यू इज डिक्रीजिंग। सो ट्रस्टी मस्ट बी अपॉइंटेड बिफोर इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, तो आपको अपॉइंट करना है पहले, और जो डिबेंचर ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करनी है विद इन 3 मंथ्स ऑफ इशू ऑफ क्लोजर करनी है, इशू क्लोजर करनी है। तो यहाँ पे अपॉइंट वाला देख लो, दो चीज़ें आएंगी, अपॉइंट कब करना है, दूसरा आएगा कि एग्जीक्यूट कब करना है। तो यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट कर, किसको, डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करना है इशू और प्रोस्पेक्टस के पहले, और एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे DT आ गया, यहाँ पे DTD आ गया। डिबेंचर ट्रस्ट डीड को एग्जीक्यूट कब करना है, इशू क्लोजर के विद इन 3 मंथ्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे प्रायर था, यहाँ पे विद इन 3 मंथ्स था, इशू और प्रोस्पेक्टस के पहले था ये, और ये इशू क्लोजर के बाद है विद इन 3 मंथ्स। ये DT के लिए था, ये DTD के लिए था, ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था, ये एग्जीक्यूशन से रिलेटेड था। तो ये आपको याद रखना है। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, अगर उनका अपॉइंट हो रहा है तो ऑफर लेटर जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जिसको टर्म शीट वगैरह भी बोलते हैं, और जो भी नाम से आप इशू कर रहे हो, तो उसमें इनका नाम होना चाहिए कि आपके डिबेंचर ट्रस्टीज कौन है। उनको आप कम्युनिकेशन करोगे तो उनका कम्युनिकेशन डिटेल्स भी होना चाहिए कि इनकेस किसी डिबेंचर ट्रस्टी को कोई ग्रीवेंस है तो वो उनको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर पाएगा। कंसेंट इन राइटिंग, अगर आप ऑडिटर को अपॉइंट करते हो तो उनसे कंसेंट लेते हो, डायरेक्टर को अपॉइंट करते हो उनसे कंसेंट लेते हो। सेम वे अगर आप डिबेंचर ट्रस्टीज को भी अपॉइंट कर रहे हो तो उनको अपॉइंटमेंट से पहले उनका कंसेंट इज मैंडेटरी।
डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, ये तो बहुत माइनर है। कंपनी का शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए, प्रमोटर नहीं होना चाहिए, केएमपी नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल लिंक्स, उनके कोई भी फाइनेंशियल लिंक्स, कैसे कोई भी इंडेटस नहीं होना चाहिए कंपनी के अगेंस्ट में, और कोई भी गारंटी उन्हें ना दिया हो कंपनी को, ओके कंपनी को और कंपनी के लिए। कैजुअल वैकेंसी का केस होता है तो बोर्ड फिल्स दिस विथ मेजोरिटी होल्डर्स कंसेंट इफ ड्यू टू रेजिग्नेशन। अगर रेजिग्नेशन के थ्रू हो रहा है तो उसको मेजोरिटी ऑफ होल्डर्स के कंसेंट से बोर्ड फिल कर सकती है। इनकी ड्यूटी क्या होती है हमने पढ़ लिया, बहुत इजी होता है कि ये अगर जो ऑफर आपने दिया है उससे कंसिस्टेंट है कि नहीं, जो आपका ट्रस्ट डीड है उससे कंसिस्टेंट है कि नहीं, जो जो डीड में लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट जाके कंपनी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स वैसे कुछ कंडीशंस पे तो इशू नहीं कर रही है। पीरियोडिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स लेते हैं वो कंपनी से, इन्फॉर्म करते हैं डिबेंचर होल्डर्स को डिफॉल्ट या कोई भी ब्रीचेस, अपॉइंट करते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर मेनली 3 केसेस में अपॉइंट होता है, अगर उनको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, रिडेम्पशन नहीं हो रहा है, या फेलियर टू क्रिएट सिक्योरिटी। तो ये तो चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं कि अगर उनको कोई नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा तो वो किस किस केस में करेंगे। अगर उनको तीन ही चीज़ें मिलती हैं, एक तो इंटरेस्ट मिलेगा, या तो उनको रिडेम्पशन का प्रिंसिपल, या तो उनको बीच में सिक्योरिटी क्रिएशन का कोई भी फेलियर हो रहा है। तो इंश्योर क्या क्या करेंगे ये, प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स, जो आपने ऑब्जेक्ट्स में लिखा हुआ है ऑफर डॉक्यूमेंट के कि अगर आप डिबेंचर से पैसा उठाओगे तो इन जगह पे यूज करोगे, यहाँ पे डिप्लॉय करोगे, वहीं पे करना है, उसके अलावा कहीं पे नहीं करना है। क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, डीआरआर कंप्लायंस, एसेट्स सफिशिएंट हैं कि नहीं और उनका इनकम्बरेंस हुआ है कि नहीं प्रॉपरली, अगर वो अनइनकम्बर्ड है तो उसको वो चेक करना पड़ेगा। एक्ट टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट, और कोई भी जनरल जो भी उनको ग्रीवेंसेस होगा डिबेंचर होल्डर्स को वो चेक करेगा ये। मीटिंग कब कब हो सकती है, अगर रिक्विजिशन पे अगर डिबेंचर होल्डर्स 10% जिनका वैल्यू है वो अगर बोल रहे हैं तो उनके कहने पे होगा, और ट्रस्टीज ओपिनियन अगर कोई भी ब्रीच हो रहा है तो वो बुला सकता है मीटिंग। फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया किस फॉर्मेट में बनती है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड SH12, ओके। विद इन 3 months ऑफ इशू क्लोजर, ये भी अपन ने ऊपर कवर कर लिया है। एग्जेम्पशन फ्रॉम सब रूल 2 to 5 फॉर पब्लिक ऑफर ऑफ डिबेंचर्स, 2 से लेके 5 तक ये जितने भी हमने पढ़े। डिबेंचर ट्रस्टीज का अपॉइंटमेंट, उनका जो भी नॉन अपॉइंटमेंट ड्यूटीज क्या था, मीटिंग कब होगी, ट्रस्ट डे होगी, एप्लीकेबल किस केस में नहीं है, पब्लिक ऑफर, अगर आप पब्लिक ऑफर लेके आ रहे हो तो इस केस में वो एप्लीकेबल नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआरआर अगर आप कर रहे हो एप्लीकेबल है तो ये किस किस मतलब ये आपको आउट ऑफ प्रॉफिट करना है, ये तो अपन ने पढ़ लिया। एग्जाम्पशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। किनको एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड है ये देखो, एग्जाम्पशन भी 2 चीज़ों में डिवाइडेड है। ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जेम्प्टेड है, और यहाँ पे है सिक्योरिटीज जो एग्जेम्प्टेड है, ओके। इन सिक्योरिटीज के केस को अगर केस में अगर आप इशू कर रहे हो तो नहीं करना है डीआरआर क्रिएट, और ये ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो डील कर रही है डिबेंचर्स में तो आपको डीआरआर क्रिएट नहीं करना है, ओके। तो कौन कौन है, आरबीआई रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, एचएफसीज बेस्ड ऑन लिस्टिंग एंड प्राइवेट प्लेसमेंट एंड लिस्टेड कंपनीज इन सर्टेन केसेस, ओके। तो हम जैसे कि सपोज आई वाज वर्किंग प्रीवियसली इन एनबीएफसी, तो हम लोग के ऊपर डीआरआर क्रिएट करने का रिक्वायरमेंट नहीं था, इसीलिए एचएफसीज एंड एनबीएफसीज आर एग्जेम्प्टेड। आरबीआई बिकॉज मतलब डेली इनको मतलब इंस्ट्रूमेंट्स में डील करना होता है तो दे आर यूजुअली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डीआरआर compliances and listed companies in certain cases, so you can मतलब write these 3 points अगर एग्जाम में आता है कि डीआरआर के एग्जेम्पशंस क्या क्या हैं। डिपॉजिट का क्या रूल है कि 15% ऑफ मैच्योरिंग डिबेंचर्स आपको जो भी अप्रैल में होने वाले हैं वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना होता है अप्रैल में। डिपॉजिट और इन्वेस्ट इन बैंक डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रस्ट एक्ट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स नोटिफाइड अंडर ट्रस्ट एक्ट, कैसे कैसे कर सकते हो यहाँ पे वो लिखा हुआ है। इंस्पेक्शन राइट्स, इंस्पेक्शन राइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रस्ट इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन लाइक मेंबर्स रजिस्टर, ये ओपन रहेगा उनके लिए। कॉपी टू बी गिवन ऑन रिक्वेस्ट इन 7 days अलॉन्ग विद द फीस एप्लीकेबल, तो अगर कोई इंस्पेक्शन के लिए मांगता है तो आप उसको 7 days के अंदर दे सकते हो।
नॉन एप्लीकेबिलिटी मैंने बता लिया, अगर ये सिक्योरिटीज आप इशू कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ लोन मतलब डिबेंचर्स, तो आपको इसके ऊपर भी डीआरआर क्रिएट नहीं करना है. कमर्शियल पेपर आर लाइक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, तो इनके केस में सिक्योर्ड हो ही नहीं सकते, और जो सिक्योर्ड नहीं होते हैं उनके ऊपर डिबेंचर ट्रस्टीज की रिक्वायरमेंट ही एप्लीकेबल नहीं होती. ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तभी आपको डिबेंचर ट्रस्टी का रिक्वायरमेंट आएगा कंपनी में. अगर मान लो वो अनसिक्योर्ड है ना, ये सिक्योर्ड है तभी तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड हो रहा है. अगर अनसिक्योर्ड है, उनको कोई सिक्योरिटी क्रिएट ही नहीं करनी, तो बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं रहेगा. इस ओनली विद द कंपनी एंड द डिबेंचर होल्डर्स, बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं रहेगा. ओके, तो याद रखना सिक्योर्ड वाले केस में डिबेंचर ट्रस्टीज आते हैं, तो ये केस में ही सारे गवर्नमेंट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं, तो इस केस में जनरली अनसिक्योर्ड होते हैं. तो यहाँ पे इसीलिए डिबेंचर ट्रस्टीज की रिक्वायरमेंट नॉट एप्लीकेबल आ जाती है. ठीक है, दिस इज अ नॉन एप्लीकेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू डिबेंचर ट्रस्टीज, तो ये हमेशा याद रखना. एंड दिस इज द नॉन रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू डीआरआर. ओके, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. सो थैंक यू, एंड आई विल बी शेयरिंग यू दिस वीडियो. एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो प्लीज़ पिंग मी इन एंड कॉमेंट फॉर द नोट्स, आई विल शेयर यू द सेम. एंड कोई भी फीडबैक, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. And as soon as possible I will be providing you with the matlab contact details of mine, because I'm just initially started uploading the videos to help you guys out. So any queries which you have, please do let me know. Okay, thank you, bye bye.